Good afternoon, everyone. We hope you all are safe and healthy. Welcome to the C++ sessions. These sessions are exclusively conducted by BVP Tech Shuttle. And before starting off the session, I'd like to ask something and make a few things clear. During the session, if you have any doubts, kindly keep it for the end or post it in the chat box. Do not interrupt us. We'll just look at the message and respond you that way. And is there any of you who's not comfortable with Hindi or English? Okay, I'm assuming everyone's comfortable with both the languages. And These sessions are a series of C++ programming language. We're conducting our first session today, and we'll be conducting rest of the sessions on weekend itself, and we'll inform you beforehand. Along with that, we'll be conducting a few quizzes, fun quizzes at the end of the session, and we'll be giving out certificates to the participants who perform really well throughout the series, not for individual sessions, but throughout the series. We'll be giving participants a few perks and certificates. Is the chat box accessible to you? No, it, no, it is only for the team members. Okay. Can you raise your hands or something? Okay, so it's possible. If you have any question, just raise your hand and we'll ask you. Do not interrupt in between, okay? And if you have any queries, you can ask or we'll start with the session. We had a lot of queries regarding whether this is paid or not. This is absolutely free, and this is an initiative by five of us. Yes, Chaitanya, you can unmute yourself if you have any questions. Okay, this is a free series of sessions, and everything we conduct on our own would be absolutely free because we just want to promote learning amongst our peers. Except for that, we also had a doubt regarding the curriculum of the sessions. So we'll be taking it from the very basics programming to the maximum that we can based on the responses. So starting off with the sessions. Today we have our first session. So today we'll be covering the number system. We'll be setting up the C++ development environment in Visual Studio Code. We'll be going through programming basics and we'll be writing your first C++ program, and we'll be discussing preprocessors and namespace along with a fun quiz to decide who will win the performer award after the completion of the series. And other students are also free to join this. You can just fill up the form that we have, and you can join the groups for more updates, like when we'll share the resources, the video recordings of the sessions, and the codes that we'll be writing, the content. So it would be better if you people join in the group after filling the form. The form is open, and this is open for all the students and everyone who wants to learn. Moving on. Am I audible? Am I audible, everyone? Yes, Chatan, you're audible. Okay, great. So hello everyone. Um, तो अब सब इंटरेक्ट कर लेना, ठीक है? यहाँ पे एकदम शांति मत रखना, इंटरेक्ट करोगे मज़ा आएगा पढ़ने में भी, डाउट भी पूछना जो होंगे, बस हैंड्स रेस कर देना, ठीक है?
तो okay, so number systems are a way to represent numbers, quantities or decimals. So there are mainly four most common types of number systems, which are decimal with base 10, binary with base 2, octal of base 8 and hexadecimal of base 16. People अभी भी join in कर रहे हैं क्या? मुझे आवाज सुनाई दे रही है. Yes, yes, you can हाँ. continue. We are having these sessions recorded, so we can just share that. You can continue. Okay, okay, okay. Yeah. ठीक है, तो मैं बता रहा था कि देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ फोर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. जिन अब ये जो नंबर सिस्टम्स हैं ये अपने बेस पे डिस्टिंग्विश करते हैं. तो व्हाट इज दीज बेसिस 10 to 8 16 क्या हैं? ओके, तो अब ये बेसिस क्या होते हैं? लेट सपोज एक नंबर सिस्टम है जिसका कोई एक बेस है x. तो उस नंबर सिस्टम में हमारे जो नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो रेंज होते हैं 0 से x-1 तक. एग्जाम्पल देखो, अब जैसे डेसिमल है, अब जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम्स है हमारा मोस्ट कॉमन है, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. उसमें हमारा बेस होता है 10. तो उसमें हमारे पास 10 ही नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 0 से 9 तक, है ना. तो अब क्या होता है, ये अब 0 से 9 तक नंबर्स हमारे होते हैं तो उसमें ना एक प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, ये हमने बचपन में ही पढ़ा था. प्लेस वैल्यूज़ होती हैं हमारी यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. तो जब हम इन्हें एक्सपैंड करते हैं तो हम कुछ इस तरह से हमने सीखा था कि यूनिट्स को इंटू 1 किया, टेंस को इंटू 10 किया, इंटू 100, इंटू 1000 ऐसे करते चले गए. तो 7356 की एक्सपेंशन इस तरह से. तो हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा. सिमिलरली ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी यही होता है. ऑक्टल में बेस 8 होता है और इसमें हम नंबर 0 से 7 तक यूज़ कर सकते हैं. हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है तो हम 0 to 9 तक नंबर्स यूज़ कर सकते हैं. ये तो हो गए हमारे 10 नंबर्स. अभी हमें चाहिए 16. अब इसके आगे तो हमारे पास नंबर्स हैं नहीं, तो हमने अल्फ़ाबेट्स को भी हमारे उसमें ले लिया. तो A to F अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं जिसमें A की वैल्यू होती है 10 और सिमिलरली B की 11 और बढ़ते बढ़ते F की 15. ठीक है. अब द मोस्ट important number system which I haven't discussed yet is binary number system. अब हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, हम ऑफ कोर्स कोडिंग करना चाहते हैं, C++ में कोडिंग करते हैं, तो अब हमें वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. अब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है, इंग्लिश, हिंदी, सो वी राइट कोडिंग लैंग्वेजेस. अब कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेजेस भी नहीं समझता, तो दैट्स वाई वी give coding languages, pass coding languages through compilers, और compilers convert them into machine language. Machine language को भी computers binary signals से समझता है. इसीलिए सबसे important number system binary number system होता है. अब binary number system का base होता है 2. That means हम उसमें सिर्फ 2 numbers यूज कर पाते हैं, 2 digits, 0 and 1. ओके, तो 0 and 1 में एक एग्जाम्पल बाइनरी नंबर का हो गया 1101. ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ देख सकते हैं. इसमें 2 की, इसमें भी प्लेस वैल्यूज होती हैं लेकिन इसमें 1s, 10s, 100s नहीं होता. इसमें बस हमारा यूजुअली इसकी प्लेस वैल्यूज 2 की पावर्स में होती हैं. हर इसकी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो अब ये नंबर है 1101. तो हम अब ये बाइनरी नंबर है तो हमें इसकी अब मान लो डेसिमल नंबर जानना है, ये है क्या नंबर एग्जैक्टली. बेसिकली जैसे 1101 तो समझ नहीं आ रहा कि क्या है. इसे अगर हम डेसिमल में देखना चाहें तो हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू बना के कि 1, इसका जो पहला नंबर है 1, वो यहाँ से 2 की पावर 0 स्टार्ट होगा. 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2 और 1 इंटू 2 की पावर 3. हम ऐसे करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अभी कभी कभी लाइक अगर तुम्हें मैं सीधा एक नंबर दे दूं और मैं बोलूं इसका डेसिमल नंबर बताओ कि है कौन सा ये नंबर डेसिमल में, तो काफ़ी कभी कभी अचानक से ये चीज़ आ नहीं पाती कि तुम सीधा मल्टीप्लाई करो. तो बहुत ही लाइक
इंटरेक्टिव और इजी भी हो जाता है, लाइक थ्रू लाइट बल्ब समझाने की ट्राई करूंगा तो मैं। अगर तो लाइट बल्ब स्विच ऑन है दैट मीन्स इट्स 1, और अगर लाइट बल्ब स्विच ऑफ है दैट मीन्स इट्स 0। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज 1 2 4 8 वही 2 की पावर्स में है सब। तो बस अगर डेसिमल निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लाइट बल्ब है वो वाली प्लेस वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 1101 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई 1, ये ऐड किया। फिर लाइट जल रहा है 4 पे, 1 + 4 5। फिर लाइट जल रही है 8 की, तो 5 + 8 13। तो 1101 इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर 13। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बाइनरी नंबर्स में 0 और 1, एक कोई भी 0 और 1 अगर लिखा हुआ है तो दैट रिप्रेजेंट्स 1 बिट ऑफ अ मेमोरी। और अगर तुम 8 बिट्स मिला दो, तुम 8 डिजिट लॉन्ग बाइनरी नंबर लिखो, तो वो 8 बिट्स फॉर्म 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो याद रखना। कोई डाउट है अभी तक तुम्हें? हैंड्स रेज कर लो अगर कोई डाउट है तो, नहीं है तो आई विल कंटिन्यू। मज़ा आ रहा है? कोई अनम्यूट करके बोल सकते हो वैसे। कोई नहीं। हाँ जी भैया, बढ़िया है। ओके ओके, समझ आ रहा है, चलो दैट्स गुड। चलो ये प्रैक्टिस टाइम आ गया थोड़ा। ये दो बाइनरी नंबर्स मैंने दिए हैं यहाँ पे। मुझे चैट बॉक्स में, अच्छा तुम्हें चैट बॉक्स है नहीं, तो जो इन दोनों के आंसर्स निकालो, पहले का आंसर निकालो। जो इसका मतलब, इसका मुझे डेसिमल नंबर बताओ। हैंड्स रेज कर लेना जो निकाल ले। 20 सेकंड दे रहा हूँ मैं। ओके, MC गणेश, शेरन गणेश, हाँ भाई बताओ। और अभिषेक 182। क्या? पहला कौन सा है? 182। 182। ओके ओके, दैट्स गुड, बढ़िया। और सेकंड वाला अभिषेक? भैया मैंने फर्स्ट वाला ही करा था, 182 कोई नहीं, सेकंड कर लो। चैतन्य, यस चैतन्य, 45। यस 45। दैट्स, यस 45। दैट्स राइट। बढ़िया, तो तुम समझ गए बाइनरी नंबर्स डेसिमल, मतलब बाइनरी नंबर्स डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तुम समझ गए। ठीक है, बढ़िया। अब ने आगे चलते हैं। इन ओके, अब केस किसी को समझ नहीं भी आया है तो अपने डाउट्स पूछ लो, कोई पॉइंट नहीं है कि मतलब डाउट्स रहे तो जस्ट आस्क इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, बस हैंड रेज करो, मैं पूछ लूंगा डाउट तुमसे। अभिषेक कोई डाउट है या? ओके, कर लिया। ओके, तो अब जैसे बाइनरी तो हमने डेसिमल सीखा कि बाइनरी से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो वैसे ही अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दे दे और हमें उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बतानी हो। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद तुम में से किसी को पता ना हो, एक बिग बैंग थ्योरी शो है। तो उस पे बिग बैंग थ्योरी शो है, तो उसमें लाइक काफ़ी बार बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने बातें करी थी। तो लाइक इट्स रियली इंटरेस्टिंग, तो ये भी ज़रूरी होता है जानना। ठीक है, तो अब मान लो एक नंबर है यहाँ पे, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है 14। अगर मुझे इस 14 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालनी है तो इट विल बी रियली इजी। मैं सिर्फ इसे 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, और जो इसका, जब हमने 2 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा वील जस्ट पुट इट इन द यूनिट्स प्लेस एंड देन आगे बढ़ते जाएंगे। लाइक सबसे लो 2 की पावर 0 पे रखा, फिर 2 की पावर 1, तो आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो रिमाइंडर आता रहेगा। 14 को मैंने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 7, रिमाइंडर आया 0, तो मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया। तुम ये देखो, फोर्थ एग्जाम्पल में 0 14 पे 14 डिवाइड बाई 2 0, तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू पे आ गया। 7 से मैंने 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया मेरा 1। वैसे 3.5 आएगा, लेकिन हम इसे रिमाइंडर निकाल रहे हैं 1 और 3 ले रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने फिर 1 रख दिया। 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो फिर से 1 रिमाइंडर आया, वो हमने फिर से थर्ड पोजीशन पे रख दिया। फिर 1 बचा सिर्फ, तो वो तो 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो वो
रिमाइंडर ही रह जाएगा अकेला 1, तो हमने फोर्थ वैल्यू पे 1 रख दिया, तो 1110 14 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। वैसे ये कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। तुम अभी से प्रैक्टिस कर रहे ना, अभी लास्ट में क्विज होगी, अगर नहीं समझ आया तो बता दो, हैंड रेज कर लो, क्योंकि अभी क्विज होगी तो उसमें क्वेश्चन आएगा डेसिमल टू बाइनरी। किसी को समझ ना आया तो हैंड रेज कर लो। किसी को डाउट नहीं है? ओके, सो मूविंग ऑन। कोई ऐसा है जिसको हैंड रेज करना ना समझ आ रहा हो? कहाँ से हैंड रेज करना है? डाउट हो लेकिन हैंड रेज करना ना आ रहा हो तो वो अनम्यूट कर ले डायरेक्ट सीधा एक बार, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अब C++ अब सब लैपटॉप्स पे आए हुए हो ना? मेरे ख्याल से सब लैपटॉप्स पे आए हुए होगे, कोडिंग सेशन लेने आए हो तो हाँ आए हो ना? ओके, दैट्स ग्रेट। तो जसविंदर, आपको कोई डाउट है? आपने हैंड रेज करा था। इफ यस आप पूछ सकते हो, मतलब कोई शाय वाली बात नहीं है। वी आर ऑल हियर टू लर्न, सो कोई बात है तो यू कैन जस्ट आस्क। Actually, my reaction itself, in handles means I'm trying to applause or other things, it's not working. यू आर नॉट ऑडिबल जसविंदर, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपके लैपटॉप के साथ इशू है कुछ? कि इशिका स्क्रीन शेयर कर लो आप। ओके, एंड आई ऑल्सो बिलीव कल जो मैंने लिंक्स भेजे थे वहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया था सबने। हाँ भैया, कर लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो फिर पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना MinGW इंस्टॉल करते हुए, ठीक है। तुम इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा MinGW का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। क्लिक कर लो इस पर। मैंने पहले कर रखा है इसे, इसलिए मैं कर नहीं रहा। जब हो जाए तो हैंड रेस कर देना। हाँ चैतन्य, हो गया? ये भैया। ओके ग्रेट, बाकी सबका भी हो गया? हाँ भैया। बढ़िया। ये डेस्कटॉप पे MinGW इंस्टॉलर आ गया होगा तुम्हारे, इसे ओपन कर लो, ठीक है। इसमें अब तुम जाओ बेसिक सेटअप पे, यहाँ से हम जाएंगे बेसिक सेटअप, इस तरफ दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पैनल में सबसे टॉप पे बेसिक सेटअप। इसमें अब सेलेक्ट करना है MinGW 32 GCC G++, नीचे से थर्ड है। इसे तुम इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तुम इस पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे अपडेट कैटलॉग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आ रहा होगा। इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे फिर रिव्यू चेंजेस और अब अप्लाई कर देना। शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चैतन्य, मेरा आपको तो कोई डाउट है क्या? आपका हैंड रेज्ड है। इन केस डाउट नहीं है तो फिर उसे डाउन कर लो। सॉरी, मैं डाउन करना भूल गया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं।
ठीक है, तुम्हारे में थोड़ा टाइम लग रहा होगा पहली बार कर रहे हो अगर, तो मेरे में हो चुका है क्योंकि मैंने पहले किया था। जब हो जाए तो हैंड रेस कर देना। अगर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है तो 5 मिनट्स में हो जाएगा मैक्स। हो गया चैतन्य? ओके ओके ग्रेट ग्रेट। अच्छा अब बढ़िया, यश का भी हो गया, दैट्स गुड। अब हैंड्स डाउन कर लो, और अब जिसका नहीं हुआ वो आगे का प्रोसेस देख लो, उसे ऐसे ही छोड़ दो, वो अपने आप होता रहेगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। तो अब तुम जाओ यहाँ पे माई कंप्यूटर में, दिस पीसी खोल के सी में, सी ड्राइव में, यहाँ पे तुम्हें MinGW का फोल्डर दिखेगा अपनी सी ड्राइव में। ठीक है, तो तुम इसे MinGW को खोलना, और ये बिन फोल्डर तुम्हें मिलेगा, इसमें बिन खोलो, MinGW में जाके बिन फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे इसका जो पाथ है, ठीक है, इसका जो पाथ है इसको कॉपी कर लेना। यहाँ पे जाके तुम इस बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा पाथ आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी कंट्रोल से भी कर सकते हो तुम। ठीक है, अब तुम जाओ दिस पीसी पे वापस, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो बता देना। कैचअप कर पा रहे हो ना? जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक। कैचअप अगर ना कर पाओ हाँ तो भैया, बता हाँ दो। भैया। हाँ भैया। ओके ओके ग्रेट। अब यहाँ से एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सबसे बॉटम में ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसे ओपन करो। इशिका ओपन कर दो जरा, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस। ग्रेट ग्रेट। हाँ, अब यहाँ पे ये आपको पाथ का ऑप्शन दिखेगा सबसे टॉप पे। ठीक है, और इस पाथ को ओपन करना। ठीक है, इसको क्लिक किया और इसमें एडिट पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, नहीं ये वाला एडिट नहीं। हाँ, अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना। मैंने पहले ही MinGW.bin डाल रखा था, इसीलिए मेरे को तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तुम पाथ को क्लिक करके नीचे एडिट पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी। इसमें तुम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना, और अपना जो पाथ तुमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना। ऐसे आ जाएगा जो मेरा यहाँ पे आया हुआ है, सी MinGW.bin। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, और उसके बाद नीचे सिस्टम वेरिएबल्स में भी तुम्हें एक पाथ दिखेगा यहाँ पे, इसमें भी जाना, और इसमें भी न्यू करके इसमें भी पेस्ट कर देना सेम पाथ। ठीक है, इसमें भी तुम्हें दिख जाएगा, मैंने पहले डाल रखा था तो इसमें ऑलरेडी है। उसके बाद पेस्ट करके बस ओके पे क्लिक कर देना। ओके अगेन, ओके अगेन। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे VS कोड इंस्टॉल। इतना काम हो गया सबका? हैंड रेस कर दो जितना हो, जिनका हो गया इतना। बढ़िया, चैतन्य का हो गया। ओके, काफ़ियों का हो गया, दैट्स गुड दैट्स गुड। चलो सही है, अब हम जाएंगे अपना VS कोड इंस्टॉल करना। बढ़िया, काफ़ियों का हो गया, गुड। ठीक है ग्रेट। तो अब हम VS कोड का तुमने सेटअप जो इंस्टॉल किया था, ठीक है, अब यहाँ से हम इसे इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से फिर नेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड, क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। अगर ये तुम्हारी चॉइस है, तुम बनाना चाहो तो बना लेना, चेक बॉक्स को टिक कर देना बॉटम में। इसके बाद अब ये जो है, इसे सेलेक्ट एडिशनल टास्क, इसमें ये ध्यान रखना, अगर तुमने ये नहीं किया हो दिक्कत आ सकती है बाद में। इसमें सब कुछ चेक कर दो, सारे के सारे टिक होने चाहिए, वरना बाद में तुम्हें दिक्कत आएगी कोर्स में। ठीक है, सब इसे चेक कर देना ध्यान से, गलती से छोड़ना मत।
अगर तुमने इस स्लाइड को गलती से स्किप कर दिया तो बैक जाके इसे चेक कर लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, और अब इंस्टॉल। तो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। बढ़िया, यहाँ पे मेरा VS कोड इंस्टॉल हो गया। किस किस का हो गया यहाँ तक मेरे को फॉलो कर रहे हैं सब? बढ़िया बढ़िया। और 2-3 लोग जिनका हो गया हैंड रेस करते रहो जैसे जैसे हो जाए। ग्रेट ग्रेट, जसविंदर, अक्षय, रिया, मयंक, गुड गुड। चलो ठीक है, हो रहा है मतलब। ठीक है, VS कोड काफ़ी अच्छा IDE है कोडिंग पे काम करने के लिए, बिकॉज बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत लाइट है, मज़ा आएगा इस पे काम करने में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे IDE इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। इतना हो गया ना सबका? अब यहाँ पे देखो, सेटिंग्स बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाना। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इससे पहले पहले हमें एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, वील इंस्टॉल एक्सटेंशंस, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ऑप्शन इस कलर का, ये डब्बे डब्बे दिख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट में, लेफ्ट पेन में बिल्कुल यहाँ पे ये कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे इस टाइप के। तो मैं कुछ एक्सटेंशंस बताऊंगा, उन्हें सर्च करना और यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो C++ सर्च करो, और ये पहली एक्सटेंशन जो है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके हमें इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है इसे। फॉलो कर रहे हो ना मेरे को? एक्सटेंशंस वाला पेन मिल गया ना? हैंड रेस करो। गुड गुड, चैतन्य बढ़िया, दिशान, मयंक, रिया, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, यहाँ से इस अभिषेक, बढ़िया, इसे इंस्टॉल कर लो। उसके बाद तुम सर्च करो यहाँ पे आके कोड रनर। ठीक है, कोड रनर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है। उसके इस पे क्लिक करके इसे भी इंस्टॉल कर लेना, कुछ सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, मिल गई सबको? दैट्स ग्रेट। हाँ बढ़िया बढ़िया। इसके बाद एक और है, तुम कर लो जुपिटर, JUPYTER। ठीक है, तुम इसे भी इंस्टॉल कर लेना। ग्रेट, आई होप हो गया। हैंड रेस कर दो जिसके हो गए एक्सटेंशंस। मयंक, अभिषेक, रिया, अक्षय, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। हाँ, बढ़िया। ठीक है, फाइल, अब इसके बाद तुम फाइल्स में जाओ, फाइल में ऊपर टास्क मैनेजर में, टास्क बार में फाइल में जाओ, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो सेव के साथ। एक तो ऑटो सेव को चेक कर दो यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑटो सेव को चेक कर दो। मयंक, कोई डाउट है आपको? आपका हैंड रेज्ड है। नो री वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक मुझे फॉलो कर रहे हो ना? प्रेफरेंसेस मिल गया, प्रेफरेंसेस में आ जाके फिर सेटिंग्स में आ जाना। ठीक है, और ऑटो सेव को वहाँ पे चेक कर देना फाइल्स में। अब यहाँ पे तुम सेटिंग्स में आ गए,
तो यहाँ पे सर्च करो कोड रनर, सेटिंग में आके सर्च करो कोड रनर, ठीक है। यहाँ से अब तुम नीचे आना कोड रनर सर्च करने के बाद, और यहाँ पे ये तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा रन इन टर्मिनल, ठीक है। ये रन इन टर्मिनल दिख रहा होगा, इसे चेक कर दो, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैं तुम्हें अभी इसकी इम्पोर्टेंस बता दूंगा कि क्यों करा है हमने इसे चेक, तो तुम इसे पहले चेक कर दो। और उसके साथ में सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, इसको भी चेक कर दो, और सेव फाइल बिफोर रन, इसको भी कर दो, ठीक है। इन तीन को तुमने चेक कर दिया। जिसने कर दिया ये काम हैंड रेस कर दो, जस्ट टू टेल मी यूर फॉलोइंग अप। ग्रेट चैतन्य, यश गुप्ता, रिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब कर रहे हैं, ओके बढ़िया, ठीक है। हमने ये काम कर दिया। अब मेरे अकॉर्डिंग हमारी आईडीई सेटअप हो चुकी है। अब हम लिखेंगे पहला सी प्लस प्लस का तुम्हारा कोड, और जो कि बहुत सिंपल है। अब तक हमने तुम्हें कुछ सी प्लस प्लस के बारे में नहीं पढ़ाया, और तुम बहुत इजीली अपना पहला कोड लिख दोगे, ठीक है। तो सबसे जो मैं टाइप करते जा रहा हूँ तुम उसे फॉलो करते जाओ मेरे साथ साथ, और साथ में टाइप करते जाओ, ठीक है। कोई अपनी एक फाइल ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे थे तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐसा, एक एक फाइल बनाने के लिए उसका कुछ भी नाम रख देना, session1.cpp। फाइल बना के ये ओपन कर लो, एक फाइल कर ली सबने। और उसके बाद मेरे को जो मैं टाइप करता आ रहा हूँ मेरे को फॉलो करते जाना। ओके रिया, दैट्स ग्रेट। चलो सब कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना अगर तुम्हें ना मिल रहा हो ऑप्शन, हैंड रेस कर लेना। अभी भी ज्वाइन इन कर रहे हैं लोग, कोई नहीं, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। सब फॉलो अप कर रहे हैं मेरे को, ओके बढ़िया। अनुराग पांडे, ग्रेट ग्रेट। ऋतिक राज, बढ़िया बढ़िया, सब कर रहे हैं फॉलो अप, ये अच्छी बात है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हमारा सबने लिख लिया इतना कोड, लिख लो आराम से। हमने ये कोड लिख लिया, बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगा, और यहाँ तुम नीचे देखो, अगर बिल्कुल नीचे, यहाँ इसे हटाऊँ मैं, नीचे तुम्हारा एक टर्मिनल खुल गया। ये तुम्हारा VS कोड का, ये तुम्हारा VS कोड का टर्मिनल है। ऐसे उठा नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है, एम आई ऑडिबल? हाँ Yes, भैया। you're audible.
ओके, मेरा कुछ इंटरनेट इशू है यहाँ पे, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। नीचे देखो, यहाँ तुम्हें एक टर्मिनल ऑप्शन खुल गया है, ठीक है। ये तुम्हारा VS कोड का टर्मिनल है, जहाँ पे तुम कमांड्स लिख सकते हो, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे ये इसका है VS कोड का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइप करवाया हेलो वर्ल्ड आवर फर्स्ट C++ सेशन, और ये हमारा रन हो गया है। यहाँ पे हमारा आउटपुट हमें दिख रहा है। किस किसने रन कर लिया, मुझे एक बार हैंड रेस करके बता दो। चैतन्य, अनुभव, रिया, ऋतिक, हितेश, गांधी, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस। अगर तुमने आज तक C++ में कोई कोड नहीं लिखा था तो ये तुम्हारा पहला था, कंग्रेट्स, ठीक है। ये तुम्हारा पहला कोड हो गया। अब थोड़ा वॉक थ्रू करते हैं कि हमने किया क्या एग्जैक्टली इस कोड में। ये भी जानना ज़रूरी है, सिर्फ कोड लिखना ज़रूरी है नहीं, जानना भी ज़रूरी है हमने किया क्या है, ठीक है। तो मैं एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकेंड। सॉरी अबाउट दैट। किसी को डाउट है? आई थिंक हैंड रेज, मानसी दहिया, आपको डाउट है कुछ? आप अनम्यूट कर लो। ओके, नहीं था डाउट कोई, ठीक है। ठीक है, तो अब हम कोड में वॉक थ्रू करेंगे कि बेसिकली हमने करा क्या है इस कोड में एंड उसका पर्पस क्या था। सो फर्स्ट थिंग, हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखी, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब अगर हम रैंडमली कहीं पर ये चीज़ टाइप करेंगे दैट इज़ सी आउट, तो क्या होगा, वो हमें ये बोलेगा कि दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। तो हमें इस वर्ड का मीनिंग मिला कहाँ से एक्चुअली में? हमें इस वर्ड का मीनिंग मिला यहाँ से, आईओ स्ट्रीम से। आईओ स्ट्रीम क्या है? एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो हमारी एक स्टेटमेंट है या हमारी एक कमांड है सी आउट, उसको एक सिग्निफिकेंस मिल गई वहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, एक स्कोप डिफाइन कर दी कि हमारा ये जो कोड है ये इस एरिया में रन हो रहा है। एरिया एज एन स्क्रीन वाला एरिया नहीं, एज एन कोड ब्लॉक का एरिया। उसके बाद मूविंग ऑन टू इंट मेन, इससे क्या होता है, हम ये बताते हैं कि हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मेन का यही सिग्निफिकेंस है कि ये हमारा ड्राइवर कोड है, हमारा मेन काम इसके अंदर होगा। उसके बाद व्हाट इज सी आउट? सी आउट मीन्स console output. That means that we want to output something. If you see here, जो हमने कमांड डाली है इन्वर्टेड इन कोड्स के बीच में, तो उससे क्या हुआ, वो सेम प्रिंट हो गया जो भी हमने सेंटेंस डाला था। तो दैट इज़ बिकॉज हमने बोला कि हमारे कंसोल के ऊपर हमें ये आउटपुट करवाना है एंड ये हमारी स्टेटमेंट है। तो टू डिस्टिंग्विश कि कहाँ पर हमारी कमांड है एंड कहाँ पर हमारा आउटपुट है, हमने यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए इस डायरेक्शन में, 2 एंगुलर ब्रैकेट्स एंड दिस सेमीकोलन टू स्टेट दैट हमारी एक स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है। हमें बताना भी पड़ेगा कि हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, नहीं तो हम कुछ भी लिखते हुए चले जाएंगे। तो उससे हमारे कंपाइलर को पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो रही है, कहाँ पे उसे स्टॉप करना है, कहाँ पे क्या करना है। उसके बाद ये जो हमारे डबल कोट्स है, सो डबल कोट्स की ये सिग्निफिकेंस होती है कि जो भी इन डबल कोट्स में होगा वो एग्जैक्टली सी आउट यूज़ करके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। एंड रिटर्न 0 का या फिर रिटर्न कोई भी वैल्यू का मतलब है कि मेरा कोड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अब आप इससे कंपाइल कर दो।
सो इस छोटे से कोड की बस यही सिग्निफिकेंस है एट द मोमेंट कि अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना हो तो हम वो कैसे करवाएंगे। यस दिव्य। अगर हम रिटर्न 0 की जगह कुछ और वैल्यू लिखते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, मतलब 0 की जगह कुछ और लिख दें तो? तब भी रिटर्न हो जाएगा, जस्ट हमने एक वैल्यू ले रखी है कि हाँ रिटर्न 0 कर दो। और अगर नहीं लिखते तो अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न होगी? अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, यहाँ पे हमने लिखा है इंट, तो इंट का ये मतलब है कि हमें इंटीजर रिटर्न करवाना ही करवाना है। अगर हम कोई भी इंटीजर नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर मैं अगर आंसर हम दैट सॉरी श्योर हाँ देखो, अगर कुछ भी तुम रिटर्न नहीं करोगे तो कोड फिर भी एक बार को रन हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक वार्निंग मिलेगी कि तुमने एक इंट फंक्शन बनाया है और तुम उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। सो तुम्हें वार्निंग मिलेगी, क्योंकि ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन को तुम बिना कुछ भी रिटर्न करे कंपाइल करवा सकते हो, लेकिन वो तुम्हें वार्निंग देगा क्योंकि तुमने अगर इंट में मेन को बनाया है तो ये तुम्हारी दिक्कत देगा। क्योंकि मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन जो तुम्हारा आता है। मतलब अगर तुमने पूरा कोड लिखा है और तुमने उसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है कईयों को मे बी, लेकिन अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट हटा ही दे, रिटर्न स्टेटमेंट हटा दो बिल्कुल ही, तो एरर नहीं आएगा। ओके मेरा मतलब था अगर रिटर्न स्टेटमेंट डालते नहीं, हाँ ऐसे एरर आएगा। सो हम ऐसे यहाँ मत पर करना। देख सकते हैं कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो वैल्यू फंक्शन को बोला था कि हम रिटर्न करवाएंगे यानी कि इंटीजर, वो हमने नहीं करवाई, तो फिर यहाँ पे हमें कंपाइलर ने एरर थ्रो कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम 0 को हटाकर देखें, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 1 में भी, सो ये हमारा आउटपुट आ गया। एंड अगर हम यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट ही हटा दें तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा। हमारा फिर भी आउटपुट आ गया। बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट हमें इमीडिएटली हमारे कंपाइलर को बता देता है कि हाँ हमारा कोड जो है ख़त्म हो गया, नहीं तो हमारे कंपाइलर को एंड तक वहाँ तक जाना पड़ेगा हमारे कोड को रीड करने के लिए कि कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। तो वही सिग्निफिकेंस होता है एक रिटर्न स्टेटमेंट का। एंड उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा सिलेबल है दैट इज़ \n। तो उसका क्या मतलब होता है, \n का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने हेलो वर्ल्ड आवर फर्स्ट C++ सेशन एक लाइन में लिखा है, बट हमारे कंसोल पे ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है आवर फर्स्ट C++ सेशन। तो \n एक एस्केप कैरेक्टर होता है। एस्केप कैरेक्टर एक लाइन को एस्केप करने के लिए, तो \n means that we want to escape the line and we want to start from a very new line. Okay. So this is what the significance of your first code was. किसी को कोई डाउट है? Yes, जया। दीदी एक बार बस कमेंट कैसे करते हैं C++ में वो बता दो। वैसे तो मतलब हाँ हम ये बाद में बताएंगे ऑब्वियसली, बट नहीं वो साथ में लिखना होता है ना। हाँ श्योर, C++ में कमेंट करने के लिए दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। हम ये यूज़ करते हैं यानी कि 2 फॉरवर्ड स्लैशेस टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। इसमें क्या होता है, मैं इसको आगे नहीं एक्सटेंड कर सकती। इससे क्या होता है, जो जिस लाइन पे मैं करंटली लिख रही हूँ उस लाइन के बाद मेरा कमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा नॉर्मल कोड आएगा। एंड अगर मेरे को मल्टीपल लाइंस का कमेंट लिखना है तो मैं यूज़ करूँगी एस्ट्रिस्क, उसके बाद एक स्लैश और फिर दोबारा से ये। उससे क्या होगा कि कंपाइलर को पता लग जाएगा कि मुझे जो है मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है। तो उससे क्या होगा, ये सिंगल लाइन कमेंट था। सपोज मुझे इस लाइन में लिखना है ABC
उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में जब तक लिखना है मैं लिख सकती हूँ, ये अपने आप टर्मिनेट नहीं होगा, बट इस केस में अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा. सो दिस इज़ फॉर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कमेंट एंड दिस इज़ फॉर सिंगल लाइन. मतलब यूजुअली हमें ज़रूरत नहीं है अभी इसकी, बिकॉज हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जस्ट बिकॉज यू आस्क्ड. मूविंग ऑन. और कोई डाउट किसी को? यस अक्षय. दीदी, हाउ डिड यू रन द कोड? लाइक आपने कोड क्या? मैंने यहाँ से रन करा है, ये जो एक रन का ऑप्शन है. ओके. उसके लिए आपको कमांड भी दिख रहा होगा इस पे, Ctrl+Alt+N. तो इसमें बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती? हमने तभी जब टर्मिनल कॉन्फ़िगर करा था तो उसमें कह दिया था कि मतलब ऑटो बिल्ड हो अच्छा. जाएगा बेसिकली, तो वो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड करता है. ओके. There's also another way if you to run your code. Like अगर तुम्हें कमांड लाइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हें मज़ा आता है कमांड लाइन सीखने में, तो नीचे जो तुम्हारा टर्मिनल है, एक सेकंड में दिखाता हूँ. एक्सेस दे दो मेरे को ऋषिका. थैंक यू. तुम यहाँ पे अगर देखो तुम्हारा ये जो तुम कमांड लाइन में जो तुम्हारी डायरेक्टरी खुली हुई है, तो तुम्हारी वो डायरेक्टरी खुली होनी चाहिए पहले तो जहाँ पे तुम्हारा ये कोड फाइल है, .cpp फाइल जहाँ पे है वहाँ पे वो वाली डायरेक्टरी तुम्हारी खुली होनी चाहिए. उसके बाद तुम कमांड लिखो सीधा g++, क्योंकि तुम्हारा C++ फाइल है, g++, और फाइल का नाम session01.cpp. ठीक है, और इसको तुम एंटर करो. तो अब ये तुम्हारा कंपाइल हो गई, बिल्ड हो गई, कंपाइल हो गई, जो तुम कहना चाहो कह लो. ठीक है, बिल्ड प्लस कंपाइल दोनों हो गई हैं फाइल. और ये तुम्हारी, तुम यहाँ पे देखो जो मेरा फोल्डर खुला हुआ है इसमें a.txt फाइल आ गई है. ये जो है ये तुम्हारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई जो मैंने इसे कंपाइल किया कोड को. अब अगर मुझे इस फाइल को, कंपाइल्ड फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो मैं करूँगा a.बैकस्लैश और a. ठीक है, और मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरा यहाँ पे ये फाइल कंपाइल हो गई और मेरा सेम आउटपुट आ गया. किसी को डाउट है इसमें? ये मेनली उनके लिए है जो GUI बेस्ड रेफरेंस नहीं चाहते हैं एंड जो मतलब मेनली बिना इंटरफेस के काम करना चाहते हैं, तो दे कैन यूज दिस. यस. और एक और चीज़ है, मान लो तुम चाहते हो कि जैसे तुमने इसे कंपाइल और बिल्ड किया तो तुम्हारी फाइल a.exe नाम से आई, तुम चाहते हो कि तुम्हारी फाइल कुछ और नाम से आए, जैसे कि पहले तुमने इस बटन से रन किया था, तुम्हारी फाइल आई थी session01.exe, तुम चाहते हो तुम किसी और नाम से करो, तो उसके लिए तुम यही कमांड डालो g++ session01.cpp, उसके बाद -o और जो भी तुम नाम डालना चाहते हो, लेट सपोज टेस्ट नेम. ठीक है, मैं एंटर दबाऊंगा एंड मेरी यहाँ पे testname.exe के नाम से एक फाइल बन गई. और ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगी जैसे मेरी a कर रही थी या session.wo कर रही थी. ठीक है, सेम आउटपुट आ गया. डाउट्स किसी को? किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़ें फिर. ये भी है. ओके, चलो बढ़िया है. ठीक है, तो कोड तुमने पहला कोड लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब वापस पीपीटी पे आ जाते हैं. ठीक है, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, it's visible. ग्रेट. राइटिंग फॉर C++ प्रोग्राम ये भी हो गया. ओके. So let's move on to programming basics. Like we all want to learn to code and all,
बट वी शुड ऑलवेज नो कि हम क्या कर रहे हैं एंड किसकी क्या सिग्निफिकेंस है एंड हमें क्या कोई भी काम कैसे हो रहा है अंदर. नेक्स्ट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम इनपुट देते हैं ताकि हमें एक वैलिड आउटपुट मिले. हम प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहते हैं बेसिकली, ताकि हमारा काम इजी हो जाए, ताकि हम लोग सिस्टम्स डेवलप कर पाएँ. तो हम क्या ही करते हैं, हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही लिखते हैं हर बार. सो दैट इज़ व्हाट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट. देन हमने देखा कि हमने कोड डाला, उसके बाद उसने हमें आउटपुट दे दिया, बट बिहाइंड द सीन्स क्या काम हुआ हमें वो नहीं पता. सो लेट्स डिस्कस कि सब कुछ कैसे होता है. सो द प्रोसेस इज कंपाइलेशन. उसमें क्या होता है, हम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनाते हैं. सो व्हाट सोर्स कोड इज, जो हम खुद लिखते हैं, एंड ऑब्जेक्ट कोड इज जो हमने रन करा था. हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है हमारा, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता. जैसे कि हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं और कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, तो सिस्टम वो नहीं समझता. बट सिस्टम ऑन द अदर हैंड लो लेवल लैंग्वेज समझता है, दैट इज़ आर बाइनरी डिजिट्स 0 and 1. So let's dive in and understand how that works. So first we have pre-processing. There are basically 4 processes broadly if we consider them. So pre-processing में क्या होता है, as the name suggests, कोड जो है हमारा वो pre-process होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने कभी भी सूप बनाया, सपोज नॉर का सूप बनाया, तो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर्ड होते हैं एंड कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हम डालते हैं, लाइक वाटर है, हीट है. तो प्री प्रोसेसिंग भी कुछ वैसा ही होता है कि जो हमारी बिल्ट इन चीज़ें होती हैं ये उसे एक्सपैंड कर देता है ताकि हमारे कोड में वो यूज़ हो सके. जब हमने एक कमांड डाली #include IOStream, तो वो उसे एक्सपैंड करेगा प्री प्रोसेसिंग में कि उसका मतलब क्या है बेसिकली. जैसे मैंने बताया कि सी आउट जब हमने यूज़ करा तो सी आउट को मीनिंग तो मिल गया, बट IOStream से भी कैसे मिला, उसका भी क्या सिग्निफिकेंस है. तो वो बेसिकली एक वहाँ पे ऑपरेशन हुआ जिसने उसको एक्सपैंड करा. देन हमने सोर्स कोड दिया था जिसकी एक्सटेंशन जो है C++ में .cpp होती है. जो हमने जब फाइल भी सेव करी थी तो उसका नाम था session_01.cpp. cpp बिकॉज वो फाइल एक्सटेंशन है. उसके बाद सोर्स प्री प्रोसेस होकर हमें मिलता है एक्सपैंडेड कोड. एक्सपैंडेड कोड को हम कंपाइलिंग में डालते हैं. कंपाइल होकर वो हमें असेंबली कोड देता है. एंड असेंबली कोड क्या होता है, न्यूमोनिक्स से बना होता है. उसमें बेसिकली हमारे पास एग्जैक्टली 0 1 भी नहीं होता, बट हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी नहीं होते. तो इट्स लाइक कि मतलब लैंग्वेज चेंज करने के लिए एक हमारा एक स्टेप कह सकते हैं उसे, कि हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी. हम एक अपनी लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से या फिर जिस भी लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं उससे असेंबली लैंग्वेज में आए. देन उसके बाद कोड की असेंबलिंग होती है एंड वो हमें एक ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसकी एक्सटेंशन होती है .obj. तो वो जो कोड है वो फाइनली हमारा उस फॉर्मेट में आ जाता है कि हम उसे लिंकिंग कर सकें और हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाए. जब हम कोड रन कर रहे थे हमारे पास एक फाइल आई थी a.exe. सो दैट इज़ आर एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो हमें कहाँ से मिली, लिंकिंग में क्या हुआ, उसने हमारा जो भी हमने फंक्शंस बनाए थे, अब फॉर एग्जांपल सी आउट है तो सी आउट हमें पता है कमांड है, हमें ये पता चल गया कि वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगी. बट सी आउट जो है वो एक फंक्शन हुआ ना बेसिकली, है एक कमांड हुई, तो उस कमांड को लिंक करा जाता है जिससे वो एक एग्जीक्यूटेबल कोड में टर्न हो जाए. तो ये हमारा कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है. इससे हमने सोर्स कोड से स्टार्ट करा, हमने ये सारी प्रोसेसेस करी, उसके बाद हम एग्जीक्यूटेबल कोड पे आ गए जो हमारा कोड रन होता है और हमें आउटपुट देता है, और जहाँ इनपुट की नीड हो वहाँ हमसे इनपुट भी लेता है. So moving on, we should go through some basic terms so as to know what we are doing and what we are up to. So as I already mentioned, source code is the code that we write, the text that we use. For example, cout, for example, int main, and algorithms. So what is an algorithm?
इट इज़ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस। हमें कोई भी काम करना है तो हम ऑब्वियसली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम पहले एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, दूसरा नंबर डिक्लेयर करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसे प्रिंट करवाएंगे। तो वो हमारा एक एल्गोरिदम हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक नंबर 5, इसके बाद मैंने एक लिया b इज इक्वल टू 3। मैंने पहले मैंने जो उसको वैल्यूज़ दी वो एक स्टेप है मेरा। उसके बाद जब मैंने a प्लस बी करा तो वो मेरा एक स्टेप है। उसके बाद जब मैं उसे प्रिंट करवाऊंगी तो वो मेरा एक स्टेप है। एंड दैट इज़ व्हाट एन एल्गोरिदम इज़। इट्स नॉट अ कोड, बट ये हमें बताता है कि कोड जो है वो कैसे प्रोसीड करेगा आगे, हमें उसको किस फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद कंपाइलर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जिस पे सारा काम होता है। फॉर एग्जांपल जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें भी कंपाइलर है कि हमारा जो सोर्स कोड है वो बाइनरी कोड में और या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करके हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेम स्पेस एंड प्री प्रोसेसर्स। So pre-processes, what are these? When we wrote the code, we wrote hashtag include iostream. So that is a pre-processor. वो हमारा जैसे pre-processing step में वो expand होता है तो हमारे पास C++ में 4 types के pre-processors होते हैं: macros, file inclusion, conditional compilation and other directives. So इस session में हम discuss करेंगे macros एंड फाइल इंक्लूजन। उससे पहले हम एक बार नेम स्पेस डिस्कस करेंगे। ओके देखो, नेम स्पेस क्या होते हैं तुम्हारे? नेम स्पेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन C++। उससे पहले लैंग्वेज में नेम स्पेस नहीं थे। तो नेम स्पेस काफ़ी यूज़फुल हैं। ये तुम्हें हेल्प करते हैं कि जैसे तुमने कोई लाइब्रेरीज इंक्लूड करी, जैसे तुमने हैश इंक्लूड iostream किया था। iostream तुम्हारी एक लाइब्रेरी फाइल है जो इसमें कई प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं लाइक सी इन सी आउट, जिनको तुम यूज़ कर सकते हो अपने कोड में आउटपुट और इनपुट लेने के लिए। तो नेम स्पेसिस क्या करते हैं? दे हेल्प यू कि वो तुम्हारा स्कोप पूरे कोड में कर दें। अब स्कोप से डरना मत, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स बेसिकली कि तुम एक घर में बैठे हो, तुम्हारा दोस्त दूसरे घर में बैठा है, तुम उसके घर की चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही iostream में कोई चीज़ रखी है तो तुम iostream की चीज़ यूज़ करने के लिए नेम स्पेसिस यूज़ करते हो। जैसे हमने एक लाइन लिखी थी यूजिंग नेम स्पेस std, तो हमने उसमें यूनिवर्सल नेम स्पेस डिक्लेयर कर दिया था कि हम सारी हेडर फाइल्स जो हम लाइब्रेरीज हेडर फाइल्स इंट्रोड्यूस करेंगे हैश इंक्लूड के साथ, वो सब हम थ्रू आउट द कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वो लाइन यूजिंग नेम स्पेस std नहीं यूज़ करते, तुम ट्राई करना, अभी तुम्हारे पास IDE है, तुम कमेंट कर दो यूजिंग नेम स्पेस std को और रन करके देखो। वो तुम्हारा कहेगा कि सी आउट इज आउट ऑफ स्कोप और वो दिक्कत देगा, तो वो कोड रन नहीं होगा क्योंकि तुम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन यूजिंग नेम स्पेस std को यूज करके तुम कर सकते हो। तो ये नेम स्पेस की इम्पोर्टेंस होती है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तुम्हारे लिए सेंस नहीं बनाएंगी। रीज़न बीइंग हर चीज़ थ्योरी में समझाना इज़ नॉट पॉसिबल एंड वी वांट कि तुम्हें मतलब बेसिक्स भी समझ आए। सो कुछ चीज़ें ना प्रैक्टिस के साथ एंड एप्लीकेशन के साथ ही समझ आएंगी। सो मतलब अगर किसी को कुछ बाय चांस नहीं भी समझ आ रहा है तो डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड। हम लोग मतलब साथ में सब कर लेंगे एंड मतलब एट टिल द पॉइंट कि मतलब जब हम लोगों को समझ आ जाए अच्छे से, मतलब वील वर्क ऑन इट। एंड अभी जस्ट थ्योरी है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक स्टफ एंड ग्रैब एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नहीं तो जब हम कोड करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी डिड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग। So moving on to preprocessors, as I already mentioned, there are 4 types of preprocessors in C++. So we'll be discussing macros and file inclusion in this session. So macros are the codes which are used to define something. For example, when we want to use something like let us consider an algebraic equation.
So we have an equation x cube plus 2x square plus something something, and we want to use it again and again in the code. So if we use it again and again in the code, what will happen is that हमारा कोड लेंदी हो जाएगा एंड हमें बार बार लिखना पड़ेगा एंड मे भी हो सकता है कहीं पर मैं एक्स क्यूब के बदले वहाँ पर थोड़ी सी एरर भी कर दूँ. तो what we can do is we can define a constant using this. अगर मैं उसे यूज करूंगी तो मेरे को एक कांस्टेंट मिलेगा जो कि मैं हैशटैग डिफाइन से एक डायरेक्टिव जो माइक्रो होता है उसको डिफाइन करती हूँ हैशटैग डिफाइन से. जैसे हमने इनिशियली हैशटैग इंक्लूड यूज करा था, सो करंटली अभी हम हैशटैग डिफाइन डिस्कस कर रहे हैं. ये भी हमारे फंक्शन से पहले आता है. Hey Kanishka, should I open ID so that you can हाँ tell हाँ them? प्लीज. Okay, great. So moving on to this. किसी को कोई डाउट हो तब तक तो पूछ लो. हाँ, you can put on your doubts till then. I'll just give you a brief demonstration of the concept. Till then you can ask your doubts. And don't worry if you are not able to understand something. It's fine, you'll understand it. Yes, Chaitanya? दीदी कितनी देर तक क्लास चलेगी है? 5 minutes more, not even 5 minutes, like 2 minutes more, and then you have a quiz, and that is up to you if you want to participate or not. But we'll be deciding on the performers accordingly on that quiz, obviously. Okay, is my screen visible? Yes, it's visible. Great. So what we do is we write it like this: define, then name. For example, I have an equation, so let's make it equation. Then what I'll do is x cube, suppose. So that is how I define it. After defining the other preprocessors and all, what I can do is I can use to define something that is a constant, and that something that I'll be requiring for a lot of times and all. So I can use this define, and this is known as a macro. Can you show the PPT again? Yeah. So here we have the presentation. Another type of preprocessor is file inclusion. So we, with the name inclusion, it's very much evident that we are talking about the include command that we gave. So we use this to add the header files. Now what are header files? Header files are the pre-designed or pre-coded files that help you, which are actually supported with built-in functions. So there are two types of file inclusions. Header files are the standard files which are already coded and they are already there in the language. We just need to include them. And user defined files. For example, I have a code, like I made a function that is very huge and I don't want to use it. I don't want to put it in my code because I want it to be neat and like productive and all. So what I can do is I can add my own file as the file inclusion. Can you move to the ID again? So here, for example, if I want to use a header file, and there's no reason why these are called header files, like it's just how it is. So for example, if I want to have the IOStream, we use IOStream for input and output evident from IO. Okay, so this is one of the built-in files. And to include my own file, what I need to do is include, and I need to use these double quotes, and then I can have my file name. So that is how we work with the preprocessor directives, and it is giving an error because I didn't put a file name here. No other reason for that. Can you move to the presentation again? Thank you. Next. So that is about these two preprocessors. And we have a short quiz made up for you guys, but before that,
You can ask questions if you have any questions or you want to know anything or whatever. And you can just unmute yourself rather than raising hands. Anything? No questions? Didi, what is the name of the code completer extension? Like C++ code completer, linter of any kind. Sorry, what? I didn't catch you. What is the name of C++ code completer? Like linter, is that what we call it? Basically, the code completer is something like that, that it is actually included in some systems and it's even not there in some systems. Like there's no particular thing like a code completer or something like that. Nothing Like completes. earlier, when I used to write main, it used to give me the whole syntax of main. Like हाँ तो that I just that had to write happens. main and then enter. हाँ तो that happens because it's already configured in your system that it will complete your code. For example, when we were coding, if you saw that there was no automatic completion of the code, so that is how a configuration works, and that is not like related to C++ in particular. So that is just something that is involved with the development platform or development environment that you're using. It's just an extension, there's no name or something for that. Moving on to the quiz. Do you have anything else? No. Okay, cool. So moving on to the quiz, kindly navigate to kahoot.it. By the way, Jatin is showing all the pre-processors files that are available. So kindly navigate to this platform and enter your full name. If you can't enter your full name, just enter the maximum amount of that, and I'll share my screen and you'll be able to see. Okay. Platform. I think you cannot access the chat box. Wait, I'll just show you. Move to Kahoot, KAHOOT.in. Sorry. Is my screen visible? Yes, it's Yes, visible. it is visible. Okay, so just What is the game navigate name? to this. And kindly keep looking at my screen also. The questions will be visible on my screen. It's a MCQ quiz sort of thing. So the questions will be visible on my screen and you'll have to select the option. Also, this is the game pin. Didi, wait a minute. Sure. Just join in and let me know when you're done. Take your time. If someone is having an issue that they cannot join, you can tell us. Yeah, definitely. We created this quiz so that you all can learn. So we'd definitely love to wait for you and guide you. चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ओके 18 आ गए हैं 19
Okay, how many of you are still trying to join? Great, आते रहो. हाँ जी, मानसी दैया, any doubt? Or you're trying? Take your time. I'm trying to. Okay, take your time. We'll wait for like 2-3 more minutes and then we'll begin the quiz, okay? So just join in as soon as you can. So till everyone joins, I just want to say one thing that today's session was mainly based upon the theory behind computing and compilation and programming. But from the next session, we'll be diving into the codes and we'll be exploring that. And we'll notify you about the sessions prior. Also, if some of you haven't joined the group and you haven't filled the form, then ask your friends for that and just fill the form so you can have the access to the resources and the videos and whatever we share. So it would be a better communication platform. Is everyone done joining the quiz? The questions will be visible only on my screen, so kindly keep your eyes here too. I'll be starting off with the quiz in just 1 minute. So if anyone's not joined, kindly join it. Okay. We think everyone has joined now, I guess. Okay, so I'll be starting on. Yeah, great. So we have our first question. Tighten your belts. What is the binary equivalent of 28? You have 30 seconds. You just have to tap on the color that is visible on your screen. Three seconds left. So the correct answer is this one. 11100. Move your cursor. Yeah, sure. So we have Aman leading the scoreboard. Moving on. Congrats. Question number 2. What is the extension of source code file in C++? This one is easy. So the correct answer is .cpp. Moving on to the next. We have Aman on the lead. Chaitanya bhi upar aa gaya.
What is the extension of the executable file? So the correct answer is .exe. There is one wrong submission. I guess गलत जगह tap कर दिया था. Okay, so Divya has the highest answer streak of 3. That's great. Moving on to question number 4. What is the base of the hexadecimal number system? So the answer is 16. So we have Okay. Chaitanya on the lead. That's great. We have question number 5. What is the decimal equivalent of 1100? "15 seconds left. You can still come on the top of the leaderboard. And we have 18 correct answers. The correct answer is 12. This is for 1, 2, 4 and 8. So 4 plus 8 is 12. Moving on. Question number 6. Which of the following are the types of the preprocessors? This is a multiple correct question. So you can put in multiple answers. So we have people with all the correct answers as 1, I believe. So moving on to the next question, we have Chaitanya on the lead again. Which command is used to print in C++? So we have 18 correct answers. So we have Divya on the streak and Chaitanya on top. Moving on to question number 8. What is used to define a macro? Next time, please try to join in using your full names so that we can track the best performer. So the correct answer is #define. What is the stepwise instructions to execute a task? This is our second last question. So the correct answer is algorithms. We use algorithms. Algorithms are the stepwise instructions. So this is the last question. What would be the output of this code? Let's see if you can tell the output of this code.
So the correct answer is C++ sessions, and All everyone of gave them. the correct answer. That's really great. Congratulations, So we have the podium. Divya. Divya got Third. all the 10 answers correct. Then we have Akshay with 10 answers. And we have Chaitanya with all the 10 answers on the top. And we have Akshita and Dishant as the runner-ups. So, do you mind putting your full names in the chat box, or maybe speaking it, Divya and Chaitanya? Chaitanya Singh Bish. Divya Balchandani. Okay, thank you. Congrats, all of you. Congratulations, this was our first quiz, and we hope you had a great time. Okay, so we'll be concluding with today's session. So if you